Hello student, Physics class 12th, Chapter 7, Alternating Current, Part 5. Now today's topic is series LCR circuit. That means a circuit which contains an inductor, a capacitor and a resistance in series and which is connected with an alternating source. Now if the current I is flowing in this circuit, I is equal to I naught sine omega t. So the voltage across the inductor we can denote as VL, and voltage across capacitor by VC, and voltage across resistance by VR. We can say that potential difference across inductor VL, potential difference across a capacitor is VC, and potential difference across a resistance is VR. We already have done that. V voltage across a resistance at any time is denoted by V naught, that is the maximum voltage, sine omega t. Voltage across a inductor at time t is V naught L sine omega t. Since across a inductor the voltage and the current relationship we already have done, that the current across the inductor lags behind the voltage. अगर वो lags behind the voltage हो रहा है and the current is flowing is this value, this is the phase. तो अगर करंट आपका lags कर रहा है in a इंडक्टर तो वोल्टेज क्या होगी, पाई बाय 2 इंक्रीज करेगी. तो यू कैन राइट पाई बाय 2. and voltage across a capacitor at any time t is given by V naught, that is a maximum peak value across the capacitor, VC से डिनोट कर सकते हैं. and here the current leads, करंट क्या करता है, लीड्स करता है by pi by 2 in the conductor. that means voltage pi by 2 phase difference से कम होगी. That much we already have done here in the previous video. We can write V naught R is denoted by is equal to I naught R के इक्वल होता है. V naught L is equal to I naught XL, and where XL is your inductive reactance and XL की जो वैल्यू रहती है that is omega L, and V naught C is denoted by I naught XC, and where is XC is equal to 1 by omega C. So this much we already have done in our previous video. Now when we talk about the phasor diagram, अगर हम यहाँ पे we have to draw the phasor diagram बनाते हैं in between the three quantities. So करंट आपका इस डायरेक्शन में रहेगा एंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस जो रहती है वो भी सेम डायरेक्शन बिकॉज दे आर इन द सेम फेज. तो यू कैन राइट V naught R, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. तो वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे रहती है. तो यू कैन राइट इट V naught L, यू कैन राइट हियर. एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज पाई बाय 2 से लैग्स करती है. तो यू कैन ड्रॉ इट हियर V naught C. So this is all about the phasor diagram. Now here that is the current and voltage का जो relation है, the phase, they are in the same phase with the current. So both are in the same direction.
and voltage in the reactance में the difference between current and voltage is differ by the phase difference कितना है यहाँ पे pi by 2 का. That is why the phase difference between current and voltage is pi by 2 का आपका phase difference. That's why we have taken in this direction because voltage across the inductor leads by pi by 2. But in the case of capacitor, the voltage is lags behind the current by pi by 2. That's why it is denoted in the downward direction. So you have to remember this. Here in the voltage phasor diagram, we are not taking the VRT with respect to time, VLT with respect to time, VRC with respect to time. ये यहाँ नहीं लेंगे. Here you have to take only the peak value. You can also take the RMS value भी ले सकते हैं for the numerical purpose. So remember this. These are the peak values. Now let us take some cases. Here the first case is when V naught L is greater than V naught C. So when we talk about when the voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitor, so we have seen that in the phasor diagram, the current in this direction and current and voltage are in the same phase. But when voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitor, in that case the phasor diagram between resistance and inductor, तो यहाँ पर आपका V naught R ही रहेगा. And here because this the value is less, तो जो इनका resultant आएगा, the resultant is same that as we have done in the vectors also. तो जो कम होगा तो वैल्यू जो यहाँ पर आएगी because VL is greater than the VOC, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी that is VL minus V naught C आएगा. This value कैसे हुआ? Because this value is less and this value is more. तो when we subtract, तो resultant क्या होगा? Obvious है in this direction होगा, तो it will represent it like this. And जो इनका resultant आएगा, that is we can write V naught here. The resultant is V naught here, and this angle which is made with the current is denoted by phi. So now the calculation portion for this, when you apply the वेक्टर रूल, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हम वेक्टर्स करते आए हैं. सो बाय अप्लाइंग दिस वैल्यू, ये आपकी यही वैल्यू आई है सपोज, तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम V नॉट स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा? दिस वैल्यू V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VL V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L minus V naught C whole square by applying the Pythagoras theorem, because this value is V naught R and this value, अगर हम इसको ये वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं तो ये यहाँ से उठा के just replace it over here, then apply the Pythagoras theorem. So V naught square is equal to V naught is also we already have done it, is V naught I naught R का स्क्वायर होगा प्लस VO that is I naught XL माइनस VOC, कैपेसिटेंस की क्या थी? I naught XC. This is whole square. Sorry, we already have done this. V naught R is I naught R, V naught L is V naught XL and V naught C is I naught XC. वही वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी हैं. नाउ ओपन इट, I naught R स्क्वायर, यहाँ से I naught कॉमन ले लेते हैं, तो I naught का स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर. ओके,
then V naught square is equal to I naught square. यहाँ से भी हम I naught कॉमन ले लेते हैं, तो I naught स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, I naught स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका आउट स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इज लेफ्ट हेयर. नाउ वी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए वी जस्ट गोइंग टू डू द अंडर रूट. व्हेन यू अप्लाई द अंडर रूट तो ये वैल्यू आई नॉट अंडर रूट से बाहर आ जाएगा एंड अंदर जो वैल्यू रहेगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. दिस वैल्यू इज लेफ्ट. नाउ वी नॉट की वैल्यू आपकी पीक करंट ऑफ द टोटल सर्किट का पीक वोल्टेज आपका वी नॉट ये निकल कर आ गया. नाउ वी कैन डिनोट वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट. एक और हम न्यू एक कांस्टेंट ले लेंगे दैट इज डिनोटेड बाय जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस. सो वी नॉट की वैल्यू आपकी आई नॉट जेड आ जाती है, विच इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस. नाउ इन दिस केस द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन द कैपेसिटर एंड साइन नॉट की आई की इक्वेशन यहाँ पे ये रहती है. तो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स कितना रहेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, कितना होना चाहिए. सो इन द केस वन वी हैव सीन दैट इंडक्टर में वोल्टेज ग्रेटर देन अ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस. तो इफ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, करंट एंड रेजिस्टेंस की दे आर इन द सेम फेज एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 यहाँ पे वी नॉट एल माइनस वी नॉट आर जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इट इज इन दिस डायरेक्शन, और इन तीनों का जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का कहाँ पर होगा, रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है मैक्सिमम पीक वैल्यू वी नॉट इज आई नॉट जेड एंड वेयर दैट जेड का वैल्यू आपका ये निकल कर आया है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल फाई. सो तो पोटेंशियल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इफ आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये तो आपका करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन हो रहा है. So voltage across in case when inductor is greater than the voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitance, वो आपका निकल कर आएगा I according to this condition. करंट आपका इस डायरेक्शन में है एंड इट इज लीड्स. कौन लीड्स कर रहे हैं, वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ when inductor is greater, the voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitor. किससे लीड कर रहा है, बाय फाई. तो ये ऊपर की तरफ लीड कर रहा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये तो करंट का है एंड करंट से वो लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, दैट इज 5 टाइम्स. So this is the maximum value or the peak value of the voltage across the LCR circuit. In that case, when voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitance. Now if we have to calculate the tan phi कितना एंगल है, तो tan phi
You can calculate tan phi with the help of this diagram only, that is perpendicular over base. Perpendicular आपका है V naught L minus V naught C upon V naught R. This can be written as V naught L आपका क्या था, I naught R, I naught XL minus I naught XC upon I naught R. So I naught से I naught सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan phi इज ऑल्सो इक्वल टू इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो इट विल इक्वल टू XL minus XC upon R. So here the formula for phi, and this is for voltage across the LCR circuit when voltage across the inductor is greater than the voltage across the capacitor. ये आपका एक और केस बन सकता है when XL is greater than XC. This can also be done with the help of same derivation. Now we are going to start with the case 2 when V naught L is less than V naught C, or you can write when XL is less than XLC. So when we have done the phasor diagram, जब हमने किया था तो करंट आपका इस डायरेक्शन में था एंड V नॉट R भी आपका इसी डायरेक्शन में था. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फेजर डायग्राम, इस डायरेक्शन में आपका क्या रहता है, V नॉट L and in this direction is your V naught C. So now the case क्या है आपका, V naught L is less than V naught C. So means अगर V naught C greater है, that means this value is greater than this value. तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इन दिस डायरेक्शन ओनली, इस डायरेक्शन में आएगा. तो जब इन तीनों का रेजिस्टेंस देखेंगे इन केस नंबर 2 व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लेस देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन बनेगा V नॉट. तो ये आपका इस डायरेक्शन में बनेगा एंड जो ये वैल्यू रहेगी आपकी, तो डिफरेंस की वैल्यू रहेगी V नॉट C माइनस V नॉट L. क्लियर. एंड द एंगल जो बनेगा विद द करंट इज, अब इस केस में ये आपका फाई, आपका ये एंगल बनेगा. क्लियर. सो देन V नॉट स्क्वायर जो रहेगा, अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, कितना वैल्यू होगा व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लेस देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो V नॉट इज इक्वल टू, अगेन यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर. यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इस यहाँ पर ये यू हैव टू कैलकुलेट. ये जो वैल्यू होगी आपकी इधर आ जाएगी, दैट मीन्स V नॉट R का होल स्क्वायर प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L का होल स्क्वायर रहेगा. अब इन द टर्म्स ऑफ करंट और V नॉट, I नॉट V नॉट R को हम I नॉट R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस V नॉट C को लिख सकते हैं I नॉट XC माइनस V नॉट L को आप लिख सकते हो I नॉट XL और इनका स्क्वायर. सो यहाँ पर I नॉट स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. नाउ ये दिस इज V नॉट स्क्वायर, V नॉट निकालने के लिए ये आपका I नॉट स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो I नॉट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर. Now again this term is where इसको हम z से रिप्रेजेंट कर देंगे. V नॉट इज इक्वल V इज इक्वल टू I नॉट, इसको भी z से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वेयर z इज इक्वल टू I स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. नाउ सी दिस रिलेशन एंड द प्रीवियस रिलेशन. यहाँ पर XC माइनस XL हो या XL माइनस XC हो, इन बोथ द केसेस सिंस इट इज फ्रॉम द स्क्वायर, इन बोथ द केसेस इट इज Z आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो वट एवर द result is in case 1 and case 2, in both the cases Z आपका which is called as impedance. Called as impedance. So when we have to write the in terms of ये आपका वैल्यू V नॉट आ गया. अब here now I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी होता है. करंट की वैल्यू ये रहेगी आपकी. तो V क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी. अब आप यहाँ देखिए करंट इन दिस डायरेक्शन. अब करंट से वोल्टेज पीछे है, लेग्स है, लेग्स बिहाइंड द करंट. कितना पीछे है, 5 टर्म्स. तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट in LCR circuit when voltage across the conductor is greater than voltage across the inductor. तो ये आपकी पीक वैल्यू आ गई है. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट 10 phi अगर आपको निकालना है, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द 10 phi निकालेंगे दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर आपका यही रहेगा V नॉट C माइनस V नॉट L अपॉन V नॉट R. और इन द टर्म्स ऑफ अगर हम इनको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा I नॉट R XC, I नॉट XC माइनस I नॉट XL अपॉन I नॉट R. तो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो 10 phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XC माइनस XL अपॉन R. तो ये आपका 10 phi कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इन द केस व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लेस देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो दिस इज द पीक वैल्यू अक्रॉस द रिजल्टेंट जो निकल कर आ रहा है आपका यहाँ पर. और ये आपका 10 phi किस तरह से निकालेंगे, phi निकालने के लिए 10 इनवर्स दिस वैल्यू. अब इन केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है. केस 2 में वी हैव सीन दैट यहाँ पे करंट जो आपका जो वोल्टेज है इट्स लेग्स बिहाइंड द करंट बाय 5 टर्म्स. दैट मीन्स अगर आपका तो लेग्स बिहाइंड द होता है तो इस समय आपका सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, LCR सर्किट इट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर. कैपेसिटर में ही आपका वोल्टेज होता है वो करंट से पीछे चलता है. इन द फर्स्ट केस द वोल्टेज इज यहाँ पर कितना निकला था, +5 निकला था. सो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो पूरा सर्किट आपका इंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा क्योंकि उसमें रिजल्टेंट +5 आ रहा है. एंड व्हेन द इंडक्टर voltage across the inductor is less than the voltage across the capacitor, in that case आपका जो सर्किट बिहेव करा इट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर. रेजिस्टेंस निकालने का, इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला इन बोथ द केस सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू हो रही है. तो रेजिस्टेंस आपका जो इम्पीडेंस निकालेंगे विच इज बिहेव एज द रेजिस्टेंस वो सेम रहेगा. 5 की वैल्यू आप देख सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम है. यू कैन
यूज दिस फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। अगर यहाँ पे कैपेसिटर ग्रेटर है तो सी XC आ जाएगा, और अगर यहाँ पे इंडक्टर का है तो XL माइनस XC हो जाएगा। इट्स अ easy way to learn the formula. Now the third case है when V naught L is equal to V naught C. So we have done in the phasor diagram में जब हम करते हैं, करंट आपका यहाँ है, V naught R आपका इस सेम डायरेक्शन में रहता है, ऊपर की तरफ आपका V naught L रहता है, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज V naught C रहता है. Now when both are equal, that means their effect is cancel out. इस this case when V naught L is equal to V naught C हो जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. So that means तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ प्योर रेजिस्टिव. तो V naught इज इक्वल टू क्या रहेगा, V naught R के इक्वल हो जाए. इट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. तो यहाँ पर आपका Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि Z का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी तक हमने क्या है, R² प्लस XC माइनस XL या XL माइनस XC जो भी रहेगा, प्लस माइनस जो भी रहेगा आपका यहाँ पर, तो इट विल कैंसिल आउट. तो Z इज इक्वल टू आपका R आ जाएगा. सो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट R लिख सकते हैं, या फिर V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ व्हेन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t रहता है, सो व्हेन V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C के इक्वल हो जाएगा, तो आपका वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट जो रहेगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो V नॉट की वैल्यू भी आपकी सेम डायरेक्शन रहेगी. एंड दिस केस, दिस इज ए स्पेशल कंडीशन, व्हेन V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस condition. This condition is called as resonance condition when V naught L is equal to V naught C के इक्वल हो जाएगा. तो LCR circuit it behaves like a pure resistive circuit, and that condition is called as resonance condition. So student, today I end up this session, and in my next video I am going to start with the what in detail about the resonance condition. Good day everyone.